Hello everyone, so today we'll be discussing about nitrogenous bases and we are dealing with a very frequent question that why always adenine pairs with thymine and always guanine pairs with cytosine. So let's first start with understanding basics about nitrogenous bases. Now what do you understand by nitrogenous bases? Nitrogenous bases are hydrophobic in nature, they are heterocyclic rings of nitrogen and carbon. So they are hydrophobic in nature and they are heterocyclic rings. Heterocyclic rings of nitrogen and carbon. Now there are two types of rings. The first one is pyrimidines and another ones are purines. Now pyrimidines are a single ring structure and purines are dual ring structure or bi ring structure. One pyrimidine ring and another ring is imidazole ring which is fused with the pyrimidine ring. So this is the structure of purines. Now what are the examples of pyrimidines? So there are the three examples: cytosine, uracil and thymine. What are the examples of purines? They are adenine and guanine. Let's draw the structures of all very quickly and let's learn how to draw the structures of them. So let's first start with the purine. So let's draw the structure of adenine first. So how do you draw the structure of adenine? It is very simple. You just have to draw the nitrogens first, add a conjugated double bonds here first, then firstly add NH2 group at the top. You can do the numbering also: 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So this is adenine and its name according to here is 6-amino purine. Now just revert this amino group in the 2' position and add oxo group here. So you can get your desired structure, that is the guanine. So let's draw this structure. Let's revert this structure, then NH2 comes here and double bond takes place here. So this is your desired structure and this is guanine. Now you can also name it as the 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Let's name this. So this is basically 2-amino 6-oxo purine. हम इसकी नंबरिंग करके भी इसका नेम कर सकते हैं. सो अब हमने देखा कि प्यूरिन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उन्हें हम कैसे बना सकते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट साइटोसिन स्ट्रक्चर. हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ साइटोसिन. अब इसी से हम साइटोसिन का स्ट्रक्चर बनाएंगे. लेट्स इमेजिन अ सिंगल रिंग स्ट्रक्चर और उस सिंगल रिंग स्ट्रक्चर में हम ऑक्सो ग्रुप को फिर से 2' पोजीशन पर और अमीनो ग्रुप को 6' पोजीशन पर भेज देंगे. तो चलिए इसका भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं. So this is nitrogen. Now what we have to do is to place this NH2 here and place a double bond here. अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डबल बॉन्ड्स की पोजिशनिंग कर देंगे. Now this is our cytosine. Next we have to draw is the uracil. uracil में हम क्या करेंगे, NH2 को डबल बॉन्ड O से रिप्लेस कर देंगे. So this will be replaced by the double bond. और ये स्ट्रक्चर जो हमें दिख रहा है वो हमारा स्ट्रक्चर होता है यूरेसिल का. नेक्स्ट स्ट्रक्चर अगर हम बनाना चाहें थायमीन का, थायमीन का स्ट्रक्चर इसी के साथ सिमिलर होता है. वी जस्ट हैव टू ऐड a CH3 ग्रुप here. Now this is your structure of thymine. अब हम चाहें तो इनकी नेमिंग करके भी इसकी नंबरिंग कर सकते हैं. हाउ डू वी आर गोइंग टू नेम नंबरिंग देम. हम इनका नंबर करेंगे 1 2 3 4 5 6. इट इज़ बेसिकली 4-amino 2-oxo pyrimidine
यूरेसिल की अगर नंबरिंग करके भी नेम करना चाहें कर सकते हैं हम लोग. व्हाट इज दिस? दिस इज 2,4 डाईऑक्सो पायरिमिडीन. सेम एज थायमीन की अगर नेमिंग करना चाहें, यूरेसिल को हम क्या बोलते हैं? डीमिथाइलेटेड थायमीन भी बोलते हैं. व्हाट इज दिस? डीमिथाइलेटेड थायमीन भी बोलते हैं, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को आपको ऐसा देख के नहीं लग रहा है कि हमने यहाँ से मिथाइल ग्रुप को रिप्लेस कर दिया है एंड इन द प्लेस ऑफ मिथाइल ग्रुप हमने हाइड्रोजन से उसकी वैलेंसी को फुलफिल कर दिया है. सो दिस इज डीमिथाइलेटेड थायमीन एंड दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज 5-मिथाइल यूरेसिल. क्यों? इस स्ट्रक्चर को ऐसा देख के नहीं लग रहा है कि हमने यूरेसिल पर 5' पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया है. नंबरिंग भी हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6. Let's name this according to this. Then this will be our 2,4 dioxo 5-methyl pyrimidine. So this is the basic things about nitrogenous bases. You can draw this structure so as to remember in future. Now let's sum up some things. अब हमने यहाँ पर नाइट्रोजनस बेसिस की चीज़ों को समझा. व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. तो एक चीज़ आप लोग रिमेंबर कर सकते हैं कि डीएनए का जो कॉम्बिनेशन होता है, व्हाट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए? ATGC. वहीं आरएनए का कॉम्बिनेशन कैसा होता है? द थायमीन इज बीन रिप्लेस्ड बाय द यूरेसिल, रेस्ट रिमेन सेम. अब डीएनए में ये नाइट्रोजनस बेसिस की प्रेजेंस ही होती है जिसके कारण उसके अंदर एबिलिटी होती है टू एब्जॉर्ब द अल्ट्रावायलेट रेज टिल द 260 नैनोमीटर्स. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. एक चीज़ और आप याद रख सकते हैं दैट दीज स्ट्रक्चर्स जो हमने यहाँ पर बनाए हैं दे आर सब्सटीट्यूटेड प्यूरीन्स या पायरिमिडीन्स रिस्पेक्टिवली हैं. ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए प्यूरीन या पायरिमिडीन तो यही है, पर इनमें हमने कुछ ग्रुप एक्स्ट्रा ऐड किए हैं या कुछ ग्रुप्स को सब्सटीट्यूट किया है, एक ग्रुप ऐड करके दूसरे ग्रुप को रिप्लेस किया है. तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं सब्सटीट्यूटेड प्यूरिमीन्स एंड पायरिमिडीन्स. ये एग्जैक्टली यही रिंग्स नहीं प्लेस्ड हैं, इन रिंग्स में कुछ मॉडिफिकेशन हो गया है. सो दिस इज ऑल अबाउट. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं कि वाई एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद थायमीन और वाई ओनली गुआनिन ऑलवेज पेयर्स विद साइटोसिन. ठीक है, सो नोट इट डाउन. तो चलिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था हमारे डिस्कशन का उसको समझते हैं. तो इस चीज़ को समझने के लिए कि एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ ही क्यों पेयर करता है, हमें इनकी स्पेसिफिक बेस पेयरिंग समझनी होगी. सो वही हम समझ रहे हैं इनकी स्पेसिफिक बेस पेयरिंग. तो अभी हमने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाना सीखे थे. अब हमने टाइम बचाने के लिए उन्हीं स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर शो किया है और उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स को दिखाया है. ये डॉटेड रिप्रेजेंटेशंस आपको जो दिख रहे हैं दे आर दी हाइड्रोजन बॉन्ड्स. अब एडेनिन और थायमीन का स्पेशल अरेंजमेंट ऐसा होता है जो फेवर करता है उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की. लाइक यहाँ पर दो टर्म्स हमने लिखे हैं, दी हाइड्रोजन डोनर जहाँ पर हमने ब्लू मार्क किया है दे आर दी हाइड्रोजन डोनर्स एंड ब्लैक जहाँ पर मार्क किया है दे आर द हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स इन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब हाइड्रोजन डोनर्स कौन से होते हैं? तो हाइड्रोजन डोनर्स वो होते हैं जो हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंटली बॉन्डेड होते हैं, इसके साथ साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन को शेयर करते हैं ड्यूरिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन. और हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन से हो सकते हैं? दे आर दी इलेक्ट्रोनेगेटिव. जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन बॉन्ड में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एक्सेप्ट करते हैं. ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं. दे हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द हाइड्रोजन इन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन कहीं जा नहीं रहा है, इट इज़ जस्ट अ फिनोमिनन ऑफ शेयरिंग ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म वीक बॉन्ड. सो ब्लू को हमने हाइड्रोजन डोनर से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है. इट इज़ ऑल्सो एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, पर वो हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंटली बॉन्डेड है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, शेयर करेगा. और ऑक्सीजन जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सब क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं या हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करते हैं. सो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फिनोमिना आप समझिए. ये हाइड्रोजन डोनर है, इट इज़ अ एक्सेप्टर. यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, और ये हाइड्रोजन डोनर है. सो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे.
सो एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में इनका स्पेशल अरेंजमेंट या कॉम्बिनेशन फेवर करता है 3H बॉन्ड्स। कैसे? 2 नाइट्रोजन यहाँ इधर इस साइड से क्या करेंगे, डोनर का काम, 2 उधर से एक्सेप्टर का काम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर से क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा हाइड्रोजन को, और इधर से NH2 ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। लेट्स जस्ट रिवर्स देम। अब जैसा आप चाहते हैं हमने इनको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। लाइक अब हमने कोशिश की है एडेनिन के साथ साइटोसिन को रखने की और ग्वानिन के साथ थायमिन को रखने की, बट ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अब इनका स्पेशल अरेंजमेंट इनकम्पैटिबिलिटी क्रिएट कर रहा है बिटवीन द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। इनकम्पैटिबिलिटी कैसा? देखिए, जिन ग्रुप्स के सामने आने से या जिन ग्रुप से कांटेक्ट में आने से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कहता होता है। अगर हम आयंस की ही बात करें तो आयंस जब कांटेक्ट में आते हैं तभी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, या उन ग्रुप्स की जब स्टीरियो सेम होती है। अब इन ग्रुप्स में यहाँ पर तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन हमें दिख रहा है, पर इन ग्रुप्स की स्टीरियो कुछ और होती है। स्टीरियो एस्पेक्ट मतलब स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, और वो स्टीरियो एस्पेक्ट या स्पेशल अरेंजमेंट ही फेवर करता है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन को। सो ड्यू टू द चेंज इन द स्पेशल अरेंजमेंट या कॉम्बिनेशन या स्पेशल कॉम्बिनेशन, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फेवर नहीं कर पाएंगे। हमने कुछ इस तरीके से ग्रुप्स को अरेंज किया है कि आप समझ सकें कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों नहीं होगा। देखिए, यहाँ पर अभी 2 डोनर, ये क्या होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं। तो यहाँ पर 2 एक्सेप्टर एक साथ आ गए हैं, दोनों के पास ही हाइड्रोजन नहीं है। एक एक्सेप्टर एक डोनर होता तो हम हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते थे, पर यहाँ पर अब हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी। सिमिलरली यहाँ पर दोनों ही क्या हैं, डोनर है। जब दोनों ही डोनर है तब भी यहाँ पर H बॉन्डिंग नहीं हो सकती। तो एडेनिन और साइटोसिन का कॉम्बिनेशन तो रिजेक्ट हो गया। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन ग्वानिन एंड थायमिन। ग्वानिन थायमिन के केसेस में क्या होगा, सेम कंडीशंस यहाँ भी बनेगी। अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करना चाहें तो दोनों ही एक्सेप्टर हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता है। यहाँ पर दोनों ही डोनर हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता है। यहाँ हो सकता था पर ये स्टेबिलिटी नहीं क्रिएट कर पाएगा। वैसे भी ये स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट इसका कुछ दूसरा ही है, जो हमें सीधा दिख रहा है वो है नहीं। सो वी कैन कंक्लूड दैट कॉम्बिनेशंस are essential condition, certain specific combinations are essential conditions for H bonding। अब एक चीज़ आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर प्यूरिन के साथ पायरिमिडीन नहीं जुड़ता या प्यूरिन के साथ प्यूरिन ही जुड़ रहा होता तो मॉलिक्यूल यानी डीएनए में भी अनस्टेबिलिटी आती। देखिए, डीएनए कुछ ऐसा होता है। अब अगर मान लीजिए एक बल्कि ग्रुप यहाँ पर लगा है, एक छोटा ग्रुप यहाँ पर लगा है, तो डायमीटर कांस्टेंट है। पर यहीं पर अगर एक बल्कि ग्रुप और लगता और यहाँ पर भी बल्कि ग्रुप यानी पायरिमिडीन और पायरिमिडीन या प्यूरिन ही दोनों लग जाते, तो प्यूरिन लगते तो दे आर द बल्कि बायरिंग स्ट्रक्चर, 2 रिंग होती है इनके अंदर। तो क्या करता है, डायमीटर वेरी करता दिस प्लेस टू दिस प्लेस, और यहीं पर अगर हमारे 2 पायरिमिडीन्स लगे होते तो डायमीटर यहाँ पर श्रिंक कर जाता। तो ये इरेगुलरिटी भी क्रिएट करता है डीएनए में, इसलिए अनस्पेसिफिक बेस पेयरिंग नहीं होती है। द स्पेसिफिक बेस पेयरिंग इज एडेनिन टू थायमिन, ग्वानिन टू साइटोसिन इन केस ऑफ डीएनए। In case of RNA, the thymine is being replaced by the uracil, rest remain same. So this is for all our discussion to be done. Thank you everyone.